باوقار خوش عقیدہ سامعین، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ پیارے سامعین، آج ایک لمبی مدت کے بعد میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں، اور 10 جنوری 2021 میں، اور یہ اس سال کی میری پہلی تقریر یوٹیوب پر پڑ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ حضرات اس تقریر کو سنیں، شیئر کریں، لائک کریں، ثواب کمائیں، اور آپ حضرات کی خدمت میں کچھ دیر میں گفتگو کروں گا۔ ایک مرتبہ جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، من زارا تربتی وجبت لہو شفاعتی، ان پر درود جن سے نویدان بشر کی ہے۔ اور فرماتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت، ان کے طفیل حجبی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آقا کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کی نہضت کدھر کی ہے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی یہ اشعار عظیم الشان اشعار تھے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے۔ ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے سامعین، آج میں مختصر وقت میں آج آپ حضرات کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں کچھ معجزوں کا ذکر کروں گا، اور آپ حضرات کے عشق رسول میں انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوگا، آپ کی فکر مشکبار ہوگی، آپ کے ایمان کی کھیتی ہری بھری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے سامعین، توجہ کرنا، معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جسے دیکھنے کے بعد انسان عاجز ہو جائے، یعنی خرق عادت جو فعل ظاہر ہوا کرتا ہے، عادت کے خلاف جو فعل ظاہر ہوا کرتا ہے، تو اس کو معجزہ کہا کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام کا چاند کے 2 ٹکڑے فرما دینا، اور سورج کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پلٹا دینا، یہ معجزات میں سے ہے۔ پیارے سامعین، توجہ کرنا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو ایک اعرابی، عرب کا رہنے والا دیہاتی آپ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد عرض کیا، آیا اور منہ کھولا، اور اس نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس آنے کے بعد آپ نے اس سے فرمایا، آپ نے گویا کہ حضور علیہ السلام نے اس شخص کو دعوت اسلام دی۔ اس اعرابی نے کہا، میں آپ کی نبوت پر کوئی
गवाह भी है, यानी आप नबी हैं, इसके लिए क्या गवाही है, इसके लिए क्या गवाही है कि आप नबी है। चुनांचे आपने फरमाया कि इस दरख्त जो तू देख रहा है, अगर इसको मैं अपने पास बुलाऊं और इसको अपने पास बुलाने के बाद अगर ये दरख्त मेरे नबी होने की गवाही दे तो क्या तू मेरी नबुव्वत को कबूल करेगा? कहा हाँ हाँ ठीक है, अगर शजर ने, इस दरख्त ने अगर आपके नबुव्वत नबी होने की गवाही दे दी तो मैं ईमान ले आऊँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त की तरफ इशारा किया, दरख्त दाएं हिला बाएं हिला और अपनी जड़ों को चीरता हुआ प्यारे नबी की बारगाह में आ गया, और आ जाने के बाद आपके नबुव्वत का इकरार किया। इतना देखना था कि वो जो एराबी था वो भी इस्लाम ले आया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। ये है प्यारे नबी का मौजज़ा कि प्यारे नबी की बारगाह में शजर भी आपकी नबुव्वत को तस्लीम करते हैं। इसीलिए तो हज़रत अल्लामा बूसीरी अलैहिर्रहमा ने फरमाया था, जाअत निदामतिहिल अशजारु साजिदा तमशी इलैहि अला साकिम बिला कदमिन, यानी आपके बुलाने पर दरख्त सजदे करते हैं, बिला कदम आपके पास आ जाया करते हैं, बिला कदम, पर बिला कदम हो यानी उनके कदम नहीं हैं, फिर भी आपके बुलाने पर वो चले आते हैं। सुभान अल्लाह, ये क्या ही अच्छा वाक़या था जो मैंने आप हजरत के सामने पेश किया। प्यारे सामईन तवज्जो करना, और एक रिवायत में है इस दरख्त ने बारगाह रिसालत में आकर अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहा। तेरा भी ये मौजज़ा देखते ही मुसलमान हो गया और जोश अक़ीदत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं। ये सुनकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा के सिवा किसी और को सजदा करने का अगर मैं हुक्म देता तो मैं उसको देता, यानी औरतों को देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें, लेकिन औरतों को भी अपने शौहरों को सजदा करने का हुक्म नहीं है, सिर्फ खुदा के लिए सजदा होता है, मखलूक के किसी भी मखलूक के लिए कोई सजदा नहीं है। ये फरमाकर आपने उसको सजदा करने की इजाज़त नहीं अता फरमाए। फिर उसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह अगर आप इजाज़त दें तो मैं दस्ते मुबारक और पाए मुक़द्दस को बोसा दूँ। आपने उसकी इजाज़त मरहमत फरमा दी। इसी रिवायत से ये मालूम होता है कि बुजुर्गान दीन की, उलमाए किराम की, औलिया कामिलीन की, बुजुर्ग उनकी दस्त बोसी करना जायज़ है और दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे सामीन तवज्जो करना, तो ये मैंने एक बात आप हजरात के सामने पेश की है। आज देख लीजिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मौजज़ात कहाँ कहाँ हैं और आपका इख्तियार कहाँ कहाँ है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं, वो रिवायत करते हैं। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, गज़वा उहुद में आपके वालिद शहीद कर दिए गए, और हज़रत जाबिर को ये मालूम था कि मेरे वालिद ने बहुत ज़्यादा कर्ज छोड़ा है, कर्ज वो मकरूज़ होकर उनका इंतकाल हुआ है और कर्ज तलब कर रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत जाबिर आ गया। आने के बाद अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, वो दुनिया से जा चुके हैं, ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए हैं, और मेरे वालिद ने कर्ज छोड़ा है, कर्ज, और कर्ज मांग रहे हैं, अपना माल मांग रहे हैं, लेकिन मेरे पास इतना माल नहीं है कि मैं उन तमाम लोगों का कर्ज अदा करूं। और वो कर्ज मांगने वाले कौन थे? वो सारे यहूदी लोग थे, यहूदी। और हज़रत जाबिर के पास इतना माल नहीं था, तो हज़रत जाबिर ने ये सोचा कि मैं प्यारे नबी को उन्हें दिखा दूं ताकि ये अपने माल में कमी करें। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि जब वो कर्ज मांगने आए तो आप तशरीफ़ ले आना। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बुला लिया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। उसके बाद वो यहूदी भी आ जाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत जाबिर से इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास जो खजूरें हैं, अब इनके बाग होंगे, खजूर या छुआरा, कोई भी दोनों चीज़ों में से, यानी गोया के खजूर और छुआरा, खजूर को भी छुआरा बोल देते हैं, छुआरे को भी खजूर बोल दिया जाता है। तो उनके बाग थे, और उस वक्त अरब में और इस वक्त भी 80 किस्म की
کھجوریں مہیت یعنی 80 قسم کی کھجوریں موجود تھی. اور وہ یہودیوں کا جو ان کے والد پر قرض تھا وہ یہ تھا کہ کسی کی عجوا کھجور ہوگی، کسی کی صفادی کھجور ہوگی، کسی کی برنی کھجور ہوگی، کسی کی کوئی سی کھجور ہوگی، یعنی 80 قسم کی مہنگی والی بھی سستی والی بھی. وہ ان کے والد جو ان کا انتقال ہوا تھا وہ مقروض ہو کر مرے تھے، ان کا جو انتقال ہوا تھا شہید ہوئے تھے، تو ان یہودیوں کا یہ اتنا مال قرضے میں تھا، ان کی کھجوریں ان پر باقی تھی. تو حضور علیہ السلام نے حضرت جابر سے فرما دیا، اے جابر تمہارے پاس جتنی بھی کھجوریں ہیں ان سب کھجوروں کے تم ڈھیر لگا دو، الگ الگ ہر کھجور کا عجوا کا الگ لگا دو، برنی کا الگ لگا دو، صفادی کا الگ لگا دو، اس کا الگ لگا دو، اس کا الگ لگا دو، اور لگا دینے کے بعد سب کو چھوڑ دو. اب جب وہ یہودی آ گئے، حضور علیہ السلام نے جن جن ڈھیروں کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے لگایا تھا، پیارے نبی سب کے ارد گرد چکر لگانے لگے. سبحان اللہ. ابھی چکر لگانا کیا تھا؟ چکر لگانے میں کیا مشیت تھی؟ اس میں مشیت یہی تھی کہ حضور علیہ السلام اس میں برکت کی دعا فرما رہے تھے، برکتاً چکر لگا رہے تھے. اب برکتاً چکر لگانے کے بعد حضور علیہ السلام سارے ڈھیروں کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، اور چکر لگانے کے بعد جو سب سے بڑا ڈھیر ہو جاتا ہے اس پر بیٹھ جاتے ہیں، تشریف فرما ہو جاتے ہیں. آپ وہاں پر تشریف فرما ہو گئے اور فرمایا جابر سے بھیج دو سارے قرض خواہوں کو. اب ایک ایک قرض خواہ آتا گیا. حضور علیہ السلام اپنے جس ڈھیر پر تشریف فرما تھے سب کو کھجور دیتے چلے گئے. ایک آدمی آیا اس کی کھجور دے دی، دوسرا آدمی آیا اس کی کھجور دے دی، تیسرا قرض خواہ آیا اس کی کھجور دے دی، چوتھا قرض خواہ آیا اس کی بھی کھجور دے دی. یعنی جو قرض خواہ تھے سارے قرض خواہوں کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا قرض حضور نے ادا کر دیا. اور معاملہ یہ تھا کہ جو جس ڈھیر سے حضور دے رہے تھے اس میں سے کوئی کمی ہی نہیں آ رہی تھی، کھجور کم نہیں ہو رہی تھی. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرا یہ ارادہ تھا کہ جو کھجوریں ہیں اپنے والد کا ان میں سے محض قرض ہی ادا کروں گا، اپنی بہنوں کو نہیں دوں گا. لیکن جب حضور صلی السلام ان کو کھجور دے رہے تھے تو ہمارے سارے ڈھیر سلامت تھے، اور جس کھجور کے ڈھیر پر بیٹھ کر حضور تشریف فرما تھے اور حضور کھجوروں کو ان یہودیوں کو تقسیم کر رہے تھے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس ڈھیر میں سے تو کوئی کمی ہی نہیں واقع ہوئی ہے، کوئی کھجور کم ہی نہیں ہوئی ہے، کوئی اس میں کمی کی شائبہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، ایک کھجور بھی اس میں سے کم نہیں ہوئی ہے. گویا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے برکتاً چکر لگا کر اور اس پر تشریف فرما ہو کر ایسی برکت کی دعا عطا فرمائی ہے کہ کھجور کم نہیں ہو رہی ہے اور سارے قرض خواہوں کا قرض ادا ہو رہا ہے. سارے قرض خواہ اپنا قرض لے کر چلے گئے ہیں. حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت جابر کے والد کا قرض اتار دیا. سبحان اللہ. یہ پیارے نبی کا اختیار ہے. پیارے نبی کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے اور وہ بات پائے تکمیل کو پہنچتی ہے. میں 2 شعر یہ پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات کی انشاءاللہ طبیعت خوش ہو جائے گی کہ فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی. یہ حضور علیہ السلام کی زبان نبوت کا معجزہ ہے، فیضان ہے، برہان ہے، جو آپ نے کہہ دیا وہ ہو کر رہتا ہے. فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی. تمہارے منہ سے جو نکلی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. اور اس شعر پر آپ خود کو روک نہیں پائیں گے. کہا جو شب کو کہ دن ہے تو دن نکل آیا، کہا جو شب کو کہ دن ہے تو دن نکل آیا، کہا جو شب کو کہ دن ہے تو دن نکل آیا.
जो शब को कह दिया, जो शब को कह दिया, जो दिन को कह दिया, जो दिन को कह दिया कि शब है तो रात हो के रही, जो दिन को कह दिया कि शब है तो रात हो के रही। सुभान अल्लाह, ये प्यारे नबी का मौजज़ा है, प्यारे नबी का बुरहान है, प्यारे नबी की दलील है। प्यारे सामीन तवज्जो करना, एक हदीस पाक और हुजूर अलैहिस्सलाम के मौजज़े के कबील से पेश करता हूँ। फिर आखिर में एक बात और अर्ज करूँगा और आपकी तबीयत इंशाअल्लाह वो बात सुनकर झूम जाएगी। हज़रत अनस इब्न मालिक प्यारे नबी के सहाबी, और ये हज़रत अनस इब्न मालिक ऐसे सहाबी हैं सुभान अल्लाह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्होंने 10 साल तक खिदमत की है, 10 साल। और 10 साल की खिदमत कोई मामूली खिदमत नहीं होती है, बहुत अजीम खिदमत होती है, बहुत लंबा लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबा ज़माना होता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की 10 साल खिदमत की है। ये हुजूर के ग़ुलाम थे, ग़ुलाम। इनसे भी अहादीस मरवी हैं और जहाँ तक मेरा गुमान है ये मुकस्सिरीन सहाबा में से हैं सुभान अल्लाह। और मुकस्सिरीन सहाबा उन सहाबा वो कहते हैं जो 10 सहाबा हैं जिनको 1000 से ज़्यादा अहादीस याद हो सुभान अल्लाह। तो हज़रत अनस ने 10 साल खिदमत की और ये फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे मेरी 10 साल की खिदमत में कभी भी नहीं टोका। अब टोकने का मतलब आप समझते हैं, यानी हुजूर ने ये नहीं कहा तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने ये क्या किया। इस तरह के अल्फाज हम अपने बच्चों से, अपने फैमिली मेंबर से बोलते हैं, अपनी बहन से बोल देते हैं, माँ से भी बोल देते हैं, वालिद से भी बोल देते हैं कि तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों नहीं किया। ऐसे अल्फाज हम लोग अपनी मादरी ज़बान में कि इसका तकल्लुम कर लेते हैं, बोल लेते हैं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की उस्वा हसना में से ये है कि हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते कभी भी मुझे उफ़ नहीं कहा, उफ़ तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, ये नहीं कहा। सुभान अल्लाह, 10 साल तक खिदमत की है। लोग कहते हैं कि इस्लाम जबर तशद्दुद से फैला है। इस्लाम जबर तशद्दुद से नहीं फैला है, ये मुस्तफ़ा के किरदार से फैला है, मुस्तफ़ा के अखलाक से फैला है, मुस्तफ़ा की शमाइल से फैला है, मुस्तफ़ा के खसाइस से फैला है, मुस्तफ़ा की खुसूसियात से फैला है, मुस्तफ़ा के की गाइडलाइन से फैला है, मुस्तफ़ा के किरदार से फैला है, मुस्तफ़ा की रहनुमाई से फैला है। कि ये इस्लाम ज़बर तशद्दुद से नहीं फैला है, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की हयात तय्यबा ही हमारे लिए गोया के आइडियल है और हम उसी के तहत अगर ज़िंदगी गुजारेंगे फलाह व बहबूद के हम लोग हकदार होंगे। जो ये कहते हैं कि इस्लाम जबर तशद्दुद से फैला है, मैं उनसे ये कहूँगा नबी आज़म ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों के आगे खुदा के आगे झुका के छोड़ा। तो हज़रत अनस इब्न मालिक के ही लिए हुजूर ने दुआ फरमाई थी और इनके बाग साल में 2 बार फलते थे, यानी 2 बार फल आया करते थे। और सहाबा किराम के बागों में जो बाग थे उनके, उसमें साल में एक ही बार फल आते थे, एक ही मौसम में फल आते थे। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत ये थी कि इनके जो बाग था इनका, वो साल में 2 बार फल देता था, यानी 2 सीज़न उसमें फल आते थे। सुभान अल्लाह, ये प्यारे नबी की नबुव्वत का मौजज़ा है। वो ज़बान जिसको सब की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। तो हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे नबी के ज़माने में कहत साली पड़ गई, लोग प्यास की शिद्दत से परेशान, बच्चे परेशान, बूढ़े परेशान, जवान परेशान, मर्द परेशान, औरतें परेशान, मक्का वाले परेशान, मदीना वाले परेशान, शाम वाले परेशान, मक्का की गलियों वाले परेशान, मक्का के दीवारों वाले परेशान, मक्का के इर्द गिर्द रहने वाले लोग परेशान, मर्द और ज़न सब परेशान हैं। कहत साली पड़ गई, बारिश नहीं हो रही थी। सहाबा किराम प्यारे नबी की बारगाह में आ गए, यानी जुमा का दिन था, ये हुजूर अलैहिस्सलाम खुतबे पे थे। उसी में से सहाबा, बहुत सारे सहाबा के जहन में ये बात होगी तो उनमें से एक नुमाइंदा शख्स खड़ा हुआ। जैसा कि कई लोग जाते हैं तो नुमाइंदगी तो एक ही करता है,
सब लोग तो नहीं कहते हैं, किसी भी जगह पे जाइए, डीएम के पास जाना है तो वहाँ पर सब लोग तो नहीं कहेंगे ये हमारे सवाल है, बल्कि एक सवालात को एक पेज पे लिख लिया जाता है, एक शख्स उसे पढ़ के बता देता है ये हमारी परेशानियाँ हैं। तो ऐसे ही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जब कहत सारी पड़ गया, लोग परेशान हो गए, बारिश नहीं हो रही है, गर्मी की शिद्दत हो गई है, तो एक उन्हीं लोगों में से अरब के रहने वाले फ़क़ामा अराबियुन फ़क़ाल हलकल मालू व जाल इयालू, या रसूल अल्लाह माल हलाक हो गया है और बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं। यानी अब बारिश नहीं हो रही थी, तो आपको पता है बारिश का कितना बड़ा फ़ायदा है। जब खेती होती है तो बारिश के पानी से कितनी जल्दी खेती सैराब हो जाया करती है। तो वो कहने लगे कि माल बर्बाद हो गया, बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, फदउल्लाह लना, आप हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमा दें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर दें कि अल्लाह तबारक व तआला बारिश अता फरमा दे, बारिश हो जाए, ताकि लोग भूख और प्यास की शिद्दत से जो परेशानी हुई है उस परेशानी से बच जाएं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के से जब उन्होंने ये अर्ज किया फरफ़अ यदैहि, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों को उठा दिया। तो वो बयान करते हैं कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ उठाना था, हाथ उठाते ही आसमान में बादल छा गए, आसमान में काली घटा छा गई, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी मिंबर से नहीं उतरे थे कि झमाझम बारिश होने लगी। और बारिश का ये असर था कि आपकी दाढ़ी मुबारक से बारिश का पानी टपकने लगा, आप गोया के बारिश में भीग गए और भी लोग भीग गए। यानी मस्जिद में जुमे का दिन था, वहां पर जो उस वक्त की मसाजिद कैसे हुआ करती थी आपको मालूम है, छप्पर की हुआ करती थी, खजूर के दरख्त के पत्ते हुआ करते थे, उसको ऊपर से डालकर मस्जिद बना ली जाती थी। प्यारे सामीन, वो कितना पाकीज़ा ज़माना था कि कच्ची मसाजिद हुआ करते थी, लेकिन नमाज पढ़ने वालों की कसरत हुआ करती थी। लेकिन आपको मैं एक लम्हा फिक्रिया देता हुआ चला जाऊं प्यारे सामीन, आज हमने अपनी मसाजिद को एसीओ से आबाद कर रखा है, टैल पत्थर लगा लिया है। वुजू खाने पे ठंड का मौसम हो तो गर्म पानी का इंतजाम है, गर्मी का मौसम हो तो फ्रिज का इंतजाम है, कूलर का इंतजाम है, पंखे का इंतजाम है। लेकिन वो क्या जमाना था जहां पर न फ्रिज का इंतजाम हुआ करता था, न कूलर का इंतजाम हुआ करता था, न एसी का इंतजाम था, न टैल्स पत्थर का इंतजाम था, बल्कि सहाबा किराम ऐसे ही नमाज पढ़ते थे। हम लोगों को इतनी सहूलत हो गई है कि मस्जिद में जाते हैं, फौरन से ही वुजू खाने पे बैठते हैं, टोटी चालू करते हैं, वुजू करके छत से आ जाते हैं। लेकिन उस वक्त वुजू करना कितना कर रहा था कि सहाबा किराम थे, पत्थर से कुओं से पानी लाते थे, इतनी दूर चलकर जाते थे, फिर कुएं से पानी ढोल डाल कर निकालते थे, फिर वुजू किया करते थे। देख लीजिए हजरात मोहतरम, गोया के वो पाकीज़ा ज़माना था कि उस वक्त नमाजी तो कच्चे थे, लेकिन नमाजी तो मसाजिद तो कच्ची थी लेकिन नमाजी पक्के थे। लेकिन आज का ज़माना बिल्कुल इससे उलट गया है, इससे उल्टा हुआ ज़माना ये चल रहा है कि आज मसाजिद तो लोग बना ले रहे हैं पर भर में, लेकिन नमाजी पक्के नहीं हो पा रहे हैं। हमें फिर ये शेर ही जिस शायर का भी है याद आता है कि मस्जिद तो बना ली पर भर में, ईमा की हरारत बालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। तो लिहाजा मसाजिद पक्की बना रहे हो, नमाजी भी पक्के बन जाओ और नमाजों को बेहतर अंदाज में अदा करो। अल्लाह ताला हमको नमाज की तौफीक अता फरमा। अहमुल इबादत में से अहमुल इबादत नमाज है, तमाम इबादत में से अहम इबादत है। ये बात आ गई थी तो मैंने पेश कर दी। तो हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की तो बारिश होने लगी। तो अब जुमे का दिन था, जुमे का दिन बारिश, जब सरकार ने दुआ की तो बारिश होने लगी। अब जुमे की शाम हो गई, बारिश हो रही है, हफ्ते का दिन आ जाता है, बारिश हो रही है, इतवार का दिन आ जाता है, बारिश नहीं रुक रही, पीर का दिन आ गया, बारिश नहीं रुक रही, मंगल आ गया, बारिश नहीं रुक रही, बुध आ गया, बारिश नहीं रुक रही, जुमरात आ गई, बारिश नहीं रुक रही, हत्तल जुमातिल उखरा, यहाँ तक के दूसरा जुमा आ गया। अब देख लीजिए, इसमें एक नुक्ता भी मैं आप हजरात के सामने पेश करूँगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, तबीयत बाग बाग हो जाएगी।
सहाबी अब तक बारिश हो नहीं रही थी, अब बारिश रुक नहीं रही है। और पहले अभी जुमे वाले दिन की बात थी ये, तो पहले जो नमाज पढ़ने लोग आए थे वो धूप में आए थे, धूप में आए थे, नमाज पढ़कर गए तो बारिश होने लगी, उसी वक्त दुआ की तो बारिश होने लगी, तो बारिश में गए थे। अब ये दूसरा जुमा आ गया, बारिश रुकने के नाम नहीं ले रही है, तो गोया कि ये नमाज पढ़ने अब बारिश में आए थे, अब गए काय में है। वो तकरीर के वो इसके मफहूम सुनाने के बाद ये हदीस बयान करने के बाद बताऊंगा कि गए काय में। तो तवज्जो करना हजरात, प्यारे सामीन, आपकी तबीयत इंशाअल्लाह खुश्क हो जाएगी, फिक्र मुश्कबार हो जाएगी, ईमान की खेती हरी भरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो हफ्ता हो गया, जुमे के दिन बारिश की दुआ की थी, अब बारिश हो गई तो दूसरा जुमा आ गया, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। गोया कि ये मालूम हुआ जब अब तक अब तक जो बारिश नहीं हुई थी तो लोग बारिश से परेशान थे, नहीं हो रही थी। अब बारिश इतनी हो गई है कि बारिश परेशानी का सबब बन गई। और एक बात और मसले की बता दूं आप हज़रात को, बारिश की हमें दुआ पढ़ने की भी करनी चाहिए, और जब पढ़ते पढ़ते इतनी पड़ जाए कि रुकने का नाम न ले तो हमें उसके रुकने की भी दुआ करना चाहिए। यानी बारिश अगर अपने हद में है तो ये रहमत है, हद से तजावुज़ कर जाए तो ये ज़हमत है। ये नुक्ता मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अभी एक बात और पेश करूंगा नुक्ते की, जो पॉइंट की बात है। तो बारिश के लिए दुआ करना भी जायज़ है और बारिश रोकने के लिए दुआ भी करना जायज़ है। अब यहाँ तक के पहले वो सहाबी, वो जो अरब के रहने वाले उठे थे, उनमें से वो ही या कोई और, फ़कामा अराबियुन और गैरु, या तो वो ही अराबी उठे देहात के रहने वाले या दूसरे, कहा या रसूल अल्लाह पहले बारिश होती नहीं थी, अब रुक नहीं रही है, तो जब हो नहीं रही थी तो माल हलाक हो गया था और बच्चे भूखे प्यासे थे। अब या रसूल अल्लाह इतनी हो गई है कि तहद्दमल बिनाऊ व गरिकल मालू, या रसूल अल्लाह बारिश इतनी हो गई है कि घर गिर रहे हैं, माल डूब गया है, घर ढह रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही, यानी जो भी घर थे वो ढहने लगे हैं। या रसूल अल्लाह बारिश बहुत हो गई है, आप अल्लाह से दुआ करें कि आप अल्लाह से दुआ ये करें कि बारिश आप अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करें कि बारिश हमारे इर्द गिर्द बरसा, हम पर नहीं बरसा। जब उन आराबी ने कहा, सहाबी ने ये कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु से कि हमारे इर्द गिर्द बरसा, हमारे ऊपर ना बरसा, तो हुजूर सल्लल्लाहु ने उन अराबी के कहने पर दुआ की, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना, या अल्लाह ए परवरदिगार आलम, अल्लाहुम्मा हवा अलैना, या अल्लाह हमारे ऊपर, हमारे इर्द गिर्द बरसा, वला अलैना हमारे ऊपर ना बरसा, या अल्लाह। यानी जब सहाबी ने ये कह दिया तो हुजूर ने दुआ की, या अल्लाह ए परवरदिगार आलम, दोनों पूरे जहान को पालने वाले परवरदिगार आलम रब्बुल आलमीन, या रहमानिर रहीम, हमारे ऊपर इस बारिश को ना बरसा, लेकिन अब उसके इर्द गिर्द बरसा, इर्द गिर्द बारिश हो, हमारे ऊपर बारिश नहीं हो। जब सरकार दो आलम रसूल मुहतशम शफीउल उमम शहरयार इरम ने ये दुआ फरमाई तो बारिश होने लगी। बारिश तो हो ही रही थी, लेकिन उस जगह पर जिसके लिए कहा था वो जगह बारिश से महफूज हो गई और उसके इर्द गिर्द बारिश हो रही थी। अब क्या था, देखो पहले जुमे में धूप में आए थे, फिर बारिश की दुआ की थी तो बारिश में गए थे। अब इस वाले जुमे में जब लौट कर आए हैं, एक हफ्ते तक मुसलसल बारिश हो गई, तो ये बारिश में गए थे क्या, नमाज पढ़ने के लिए। और अब जब हुजूर ने दुआ फरमा दी तो उस एरिया में नहीं हो रही थी जिस एरिया के लिए सरकार ने दुआ फरमाई थी, तो गोया के बारिश रुक गई और धूप निकल आई। तो पहले जुमे का मामला और दूसरे जुमे का मामला क्या हुआ, पहले जुमे में नमाजी ने जो जुमा
पढ़ने आए थे सहाबा किराम, वो धूप में आए थे, बारिश में भीगते हुए गए थे, और इस वाले जुमे की नमाज में बारिश में भीगते हुए आए थे और धूप में निकल कर गए हैं। सुभान अल्लाह। ये सरकार दो आलम रसूल मुहतशम शफीउल उमम की ज़बान नबुव्वत का फैज़ान है, ज़बान नबुव्वत का मोजज़ा है। और लोग बताते हैं, वो लोग बता रहे थे जो उस जगह के इर्द गिर्द रह रहे थे कि हम उधर से आ रहे थे, फला जगह से आ रहे थे तो वहां बारिश हो रही थी, हम उधर से आ रहे थे वहां भी बारिश हो रही थी। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ से बारिश हर जगह हो रही थी, लेकिन जहां पर आपने कह दिया वहां पर बारिश नहीं हो रही थी। जब आला हजरत की नजर इस हदीस पर पड़ी तो हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस की तर्जमानी आला हजरत अपने इन अशआर में करते हैं कि हुजूर आला हजरत प्यारे नबी की इस हदीस की तर्जमानी यूं करते हुए नजर आते हैं, इस शान से करते हुए नजर आते हैं। इस हदीस की तर्जमानी शान से करते हुए हुजूर आला हजरत नजर आते हैं। इस शान से हुजूर आला हजरत करते हैं कि इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सब बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, पढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे नबी की दुआ कबूल हो गई और हुजूर अलैहिस्सलाम का ये अजीम मोजज़ा इस हदीस पाक में आप हजरात ने समाअत किया। अब आखिरी बात और आपके सामने अर्ज कर मैं रुखसत हो रहा हूँ, तवील गुफ्तगू नहीं हो जाए। इंशाअल्लाह ये वाक़या सुनकर आपकी फिर मुश्कबार हो जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक गुलाम है बर्रा। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने इख्तियार से किसी को कुछ भी अता फरमा सकते हैं, ज़बान नबूवत से कुछ भी अता फरमाते हैं, इख्तियार से कुछ भी अता फरमा सकते हैं और फरमाते हैं, क्योंकि वो ही मालिक जन्नत हैं। तो जन्नत का जो जिस चीज़ का मालिक हुआ करता है उसके हक़ है। और रात मैंने ये तफसीर में बयान भी किया है कि मालिक अपनी मिल्कियत में जो चाहे इख्तियार करे, जो चाहे तसर्रुफ करे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जन्नत के मालिक हैं, वो जिसको चाहे जन्नती बनाए। सुभान अल्लाह। तो हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस में एक साहब थे जिनका नाम बर्रा था। क्या नाम था? बर्रा। हज बैतुल्लाह से लौटने के बाद ये ग़ुलाम थे, इनका एक बादशाह था, वज़ीर था, मुशीर था, और एक जमात हज बैतुल्लाह गई थी हज करने। और हज बैतुल्लाह से वापसी के बाद सारे लोग ये मदीना शरीफ में सलाम रुखसती करने के लिए, आखिरी दीदार सरकार का करने के लिए तशरीफ़ ले आए और बर्रा भी इनके साथ थे। तो इन लोगों ने जो बादशाह, जिसके ये बर्रा ग़ुलाम थे और जो इनका बादशाह था, जो मुशीर था, वज़ीर था, इन्होंने कहा आज बर्रा से थोड़ा सा मजाक कर लें, आज बर्रा से मजाक कर लें, तज़हीक कर लें, थोड़ा टाइम पास कर लें, थोड़ा हंस लें उनके साथ। कहा कि क्या मजाक करेंगे? कहा मजाक ये करेंगे, हम बर्रा से ये कहेंगे, बहुत तवज्जो के साथ सुनना, हम बर्रा से ये कहेंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जन्नती होने की बशारत दी है। सुभान अल्लाह। कहा अब इन्होंने क्या किया, तीनों लोगों ने, बादशाह ने, वज़ीर ने, मुशीर ने, एक फ़र्ज़ी कागज़ निकाला और कहा, और ये अपना वो कर बर्रा के पास आ गए। बादशाह ने बर्रा से कहा, एक पेज निकाला, कहा देखो मुझे, हम सरकार की बारगाह में हज बैतुल्लाह जब कर लिया था तो हम आखिरी सलाम रुखसत करने के लिए गए थे और दीदार करने गए थे, हमें हुजूर ने जन्नती होने की बशारत दी है, जन्नती होने की बशारत दी है। हकीकत नहीं, उन्होंने फ़र्ज़ी था बर्रा से, चूँकि ये मजाक कर रहे थे।
कहा कि हमें बशारत दी है, तो बादशाह ने फर्जी ऐसी डुप्लीकेट पर्ची दिखला दी। और फिर जो मुशीर था उसने भी अपनी पर्ची, फर्जी पर्ची निकाली, कहा देखो हमें भी हुजूर ने जन्नती होने की बशारत दी है कि तुम जन्नती हो। और जो मुशीर था, वज़ीर था, उसने भी एक फ़र्ज़ी पर्ची निकाली। निकालने के बाद कहा देखो मुझे भी दी है सरकार ने जन्नती होने की, कहा कि तुम जन्नती हो। यानी तीनों ने बात बनाकर टाइम पास के लिए तज़हीक करते हुए बर्रा से कहा मुझे हमें सरकार दो आलम ने जन्नती होने की बशारत दी है। अब जो बर्रा ग़ुलाम थे वो उनसे रहा नहीं गया, उनकी इश्क की आग और ज़्यादा तेज़ हो गई। कहा कि जब इन्हें जन्नती होने की आका ने बशारत दी है तो मुझ गुलाम को भी जन्नती होने की बशारत क्यों ना दी जाए, मैं सरकार की बारगाह में जाता हूँ। अब ये सरकार की बारगाह में आ गए। आने के बाद कहा या रसूल अल्लाह, आपके दर से सब कुछ मिलता है, ज़मीन व ज़मा आपके दर से मिलता है। या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि आपने बादशाह को जन्नती होने की बशारत दे दी है, मुशीर को बशारत दे दी है, वज़ीर को बशारत दे दी है, तो मुझे भी, मैं ग़ुलाम हूँ, मुझे भी जन्नती होने की आप बशारत अता फरमा दें। और बर्रा ने कहा आप क्यों अता नहीं फरमाएंगे, आपकी बारगाह तो ये है कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अकर की है। और फरमाते हैं कि ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में दौलत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में दौलत रसूलुल्लाह की। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। या रसूल अल्लाह, जब आपने बादशाह को जन्नती होने की बशारत दी है, मुशीर को बशारत दी है, मैं गुलाम हूँ, या जब बादशाह को दे दी, आपकी वो बारगाह है कि यहाँ पर अगर कोई साइल आ जाए उसे भी नवाजा जाता है, मुक्तदी आ जाए उसे भी नवाजा जाता है, इमाम आ जाए उसे भी नवाजा जाता है, पीर आ जाए उसे भी नवाजा जाता है, मुरीद आ जाए उसे भी नवाजा जाता है, मर्द आ जाए उसे भी नवाजा जाता है, औरत आ जाए उसे भी नवाजा जाता है, गुलाम आ जाए उसे भी नवाजा जाता है, बादशाह आ जाए उसे भी नवाजा जाता है, शायर आ जाए उसे भी नवाजा जाता है, मुकर्रिर आ जाए उसे भी नवाजा जाता है, अवाम आ जाए उसे भी नवाजा जाता है, खवास आ जाए उसे भी नवाजा जाता है, उलमा आ जाए उन्हें भी नवाजा जाता है, मुफ्ती आ जाए उन्हें भी नवाजा जाता है, डॉक्टर आ जाए उसे भी नवाजा जाता है, मास्टर आ जाए उसे भी नवाजा जाता है। आपकी वो बारगाह है, अगर यहाँ प्रोफेसर आ जाए उसे भी नवाजा जाता है, काला आ जाए उसे भी नवाजा जाता है, गोरा आ जाए उसे भी नवाजा जाता है, अखियारा आ जाए उसे भी नवाजा जाता है, नाबीना आ जाए उसे भी नवाजा जाता है। आपकी वो बारगाह है कि सबको नवाजा जाता है। तो मैं गुलाम हूँ आका, मैं, आपने मेरे बादशाह को जन्नती होने की बशारत दे दी है, मुशीर को बशारत दे दी है, आपने वजीर को बशारत दे दी है, मुझ गुलाम पे भी आका करम कीजिए और मुझे जन्नती होने की बशारत दे दीजिए। रोने लगा बर्रा और रो रो कर बर्रा ये कहने लगा, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, हादिए बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। बारगाह नबी में बर्रा आखिरी बार अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे भी जन्नती होने की बशारत दे दें। आखिरी इजहार अकीदत पेश करके कहने लगा कि गम के मारे हैं हम, बेसहारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, आपका नाम ले के मर जाएंगे, आपका
नाम ले लेके मर जाएंगे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे। हाँ दिए बेकसा क्या कहेगा जहां, हाँ दिए बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। प्यारे नबी की बारगाह में बर्रा अर्ज करने लगा। प्यारे नबी बर्रा अर्ज करने लगा। अर्ज करते करते रोते रोते बर्रा सो गया। सो गया, उसकी आंख लग गई। ख्वाब में आका का दीदार हो गया और प्यारे नबी ने जन्नती होने की बशारत अता फरमा दी, जन्नती होने की उनको मुजदा सुना दिया और बर्रा खुश हो गए हैं, खुश हो गए हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम का इख्तियार हर चीज़ पर है। जिसको चाहे जन्नती बना दें, जिसको चाहे माल अता फरमाते हैं, जिसको चाहे आला मकाम पर फाइज फरमाते हैं। क्यों ना फरमाएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम आका ने, अल्लाह आका को अल्लाह तबारक व तआला ने मालिक मुख्तार बनाया है, इस जहां का मालिक बनाया है, इस जहां में हुकूमत करने वाला बनाया है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो हो, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। सुभान अल्लाह। बातें तो और हैं, गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, मैं इसी पर इख्तिसार कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो मैंने बयान किया इसके बयान करने में कोई गलती हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये प्यारे नबी के मैंने इख्तियारात, मोजज़ात